हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स चैम्बर। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ एमसीक्यूज़, ओके, जो तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में यूज़फुल होंगे। ओके, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में यूज़फुल, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो पहला वाला क्वेश्चन यही है, in which of the following charging process sharing of charges takes place। शेयरिंग ऑफ चार्जेस का मतलब, तो ये ऑप्शंस दिया हुआ है, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, बोथ फ्रिक्शन एंड इंडक्शन। आंसर इसका क्या है? कंडक्शन। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन which of the following चार्जिंग प्रोसेस द ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस। इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ द आंसर, दैट इज़ द फ्रिक्शन। ओके, दोनों बॉडी को फ्रिक्शन होगा तो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन which of the following चार्जिंग प्रोसेस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस टेक्स प्लेस। दैट इज ऑप्शन सी आंसर, दैट इज द इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following particles is most responsible for the electrical behavior, that is the fundamental particle, which in electron. Option A is the answer. In the different process of charging, the electron that takes part, active part, become the electron each because of smaller mass than the proton. Smaller mass much smaller than proton, that is the option B is the answer. Option B is the answer. Option B is the answer. Next, question number 6. In which of the following charging process the conservation of charge is violated? Conservation charge is the property of the charges, so that is why it is not violated any of the three, that is friction, conduction, induction. हर एक में सेटिस्फाई होगा। तो ऑप्शन इज डी। ऑप्शन इज डी, नन ऑफ द अबव। फ्रिक्शन में, कंडक्शन में, इंडक्शन में, हर किसी में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड एसआई यूनिट आर। ऑप्शन बी स्टार्ट कूलम। सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स ESU, that is the electrostatic unit, that is start coulomb and coulomb. Coulomb is the SI unit, and start coulomb is the CGS unit, that is ESU, electrostatic unit. SI unit of electric charge is greater than CGS, that is 3 into 10 to the power 9. Option B is the answer. Body is negatively charged, that means it receives electron, that means excess of electron. Negatively charged means excess of electron. Option A. Body is positively charged, then it has इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, तो इसका मतलब डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो इधर इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज, एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, next question number 11. Question number 11, a body is charged positively, then its mass. Body is charged positively, then its mass. Electron deficit, that means electron is released, so that means electron निकल गया, इसका मतलब मास क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.11 × 10 to the power -31 kg। इसका इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास। ओके, इलेक्ट्रॉन का मास यही है। क्वेश्चन नंबर 12, बॉडी चार्ज नेगेटिवली, देन इट्स मास इंक्रीजेस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, दैट इज द एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इंक्रीजेस, मास इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 13,
Coulomb's interaction between two charges separated by a distance r in vacuum is F0, then the interaction F of the same configuration of the charges inside the dielectric medium. What is the Coulomb's force? F is equals to, that is K Q1 into Q2 divided by R square. If it is a dielectric medium, then if it is a free space, that is 1 by 4 pi epsilon naught, that is Q1 Q2 by R square in SI unit. If it is a dielectric medium, then the formula being like, formula कैसे हो जाएगा, 1 by 4 pi epsilon naught into epsilon r. Epsilon r is the relative permittivity or dielectric constant, Q1 into Q2 divided by R square. तो क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर डाइलेक्ट्रिक के अंदर रख देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स घट जाएगा. तो ये वाला जो F0 है ये किसके अंदर है, ये एयर के अंदर और वैक्यूम के अंदर. तो दैट मीन्स F is less than F0 because the dielectric constant in the denominator, dielectric constant of dielectric or insulators is greater than that of air. Air का dielectric constant epsilon r relative permittivity is equals to 1 और वैक्यूम का 1 होता है. तो 1 से ज़्यादा है, ये डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब टोटल वैल्यू क्या घट जाएगा. तो F is less than F0, F is less than F0. Option C is the answer. F is less than F0, F is less than F0. Next question number 14. Question number 14 13 को फॉलो किया हुआ है. So epsilon 0 is the permittivity in vacuum and epsilon is the permittivity of the dielectric medium. Then which of the following equation is correct? ये दोनों को डिवाइड कर लो, F0 और F को डिवाइड कर लो. F0 डिवाइडेड बाई F डिवाइड कर लेंगे तो 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught, ये दोनों कट गए. Q1 Q2 कट गए, ये R स्क्वायर कट गए. तो रिमेनिंग क्या हुआ ना, 1 by epsilon naught डिवाइडेड बाई 1 by epsilon r. तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, epsilon r by epsilon naught, epsilon r by epsilon naught. तो हियर डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट और परमिटिविटी कितना दिया हुआ है, epsilon दिया हुआ है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, epsilon by epsilon naught, epsilon by epsilon naught. ये वाला हो जाएगा epsilon naught into epsilon r. epsilon naught into epsilon r is epsilon divided by epsilon naught. Epsilon naught into epsilon r is equals to epsilon. So that is epsilon divided by epsilon naught. Okay, answer is option B. Option B is the answer. Okay. Next question number 15. If air is replaced by the dielectric medium mica, the force between the two point charges shall. तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर आ गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस हो गया दोनों चार्ज, तो क्या हो जाएगा, तो दैट मीन्स इप्सिलॉन आर का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, दैट मीन्स फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है फोर्स और डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो ऑप्शन इज बी. सो डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट ऑफ एन इंसुलेटर, इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ वैक्यूम, दैट इज ग्रेटर देन 1. ओनली द वैल्यू इज 3 which is greater than 1. So that is option B is the answer. When a piece of glass is rubbed with wool, then the charge is 4 × 10 to the power minus 7 coulomb is developed on the glass, and the number of electron transferred from glass to wool, glass to wool. इतना चार्ज गया है, तो कंजर्वेशन चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल्स टू NE. सो N इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई E. सो कितना चार्ज गया है, 4 × 10 to the power minus 7, 4 × 10 to the power minus 7 divided चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 × 10 to the power minus 19. तो इसको निकालेंगे तो कितना आंसर निकलेगा, दैट इज 2.5 × 10 to the power 12. 2.5 into ऑप्शन बी इज द आंसर. इसका प्रोसेस यही है, दैट इज कंजर्वेशन quantization of charge, that is Q is equals to NE. N is the number of electrons, so N is equals to Q by E is the electronic charge. Electronic charge is 1.6 into minus 19. ये वाला चार्ज जो ट्रांसफर हुए इसको डिवाइड करके आंसर निकलेगा क्या ना,
2.5 into 10 to the power 12 is the answer. Okay. So question number 18. Question number 18. So when a piece of glass is rubbed with wool, a charge of 4 × 10 to the power 7 coulomb is developed on the glass. The mass of the glass increased by, always we know that Q is equals to Ne. So नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल सकते हैं Q बाई E करके. Q कितना है 4 × 10 to the power 7 डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 to the power -19. ऐसे करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं. हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 3.1 into 10 to the power -31 kg. दिस इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ द मास ऑफ द ग्लास इंक्रीज्ड बाय, कितना इंक्रीज हो गया इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद. तो when a piece of glass is rubbed with wool, a charge of this one is developed on the glass. So that is why हम क्या कर सकते हैं m इज इक्वल्स टू टोटल मास इज इक्वल्स टू जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो यहाँ से निकल आया था तो an इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करना है. n यहाँ पर जो निकला था यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है एंड me इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकलेगा ऑप्शन D इज़ द आंसर, दैट इज़ 22.76 into 10 to the power -19 kg. This one is the method. Okay. The two charges, question number 19, the two charges are placed at a certain distance from each other. A metal sheet is placed between them. metal sheet के अंदर electric field नहीं जा सकता. there is no electric field inside the metal sheet, no electric field. So what will be the force in between them if the metal sheet is placed. metal sheet place हो गया तो इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. ऑप्शन डी इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 20, 2 पॉइंट चार्जेस 5 माइक्रोकूलम 6 माइक्रो प्लेस्ड एट ए फोर्स कितना है 10 न्यूटन. इफ ए चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ दी चार्जेस इन द फोर्स. तो क्या हुआ फोर्स 5 फोर्स कितना है k × 5 × 6 डिवाइडेड बाई माइक्रोकूलम है तो इंटू 10 to the power -12 बिकॉज माइक्रोकूलम मीन्स 10 to the power -6 माइक्रोकूलम मीन्स 10 to the power -6 माइक्रोकूलम. ओके. तो यहाँ पर पहले से चार्ज कितना था 5 माइक्रोकूलम, उसमें कितना ऐड हो गया -5 माइक्रोकूलम, तो चार्ज कितना हो गया 0 हो गया. तो दूसरा चार्ज क्या है 6 माइक्रोकूलम, उसमें -5 माइक्रोकूलम ऐड हो गया तो कितना चार्ज हुआ 1 माइक्रोकूलम. तो एक चार्ज 0 हो गया तो फोर्स अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 0. फोर्स अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 0. ऑप्शन ए इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 21, फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस प्लस q each separated by a distance r each f, then each charge made plus 2q, then the distance between it 2r, ट्वाइस हो गया डिस्टेंस, तब फोर्स क्या होगा. तो पहले फोर्स कितना था पहले फोर्स था k q1 × q2 डिवाइडेड बाई r². अब चार्ज 2 गुना हो गया और डिस्टेंस भी 2 गुना हो गया तो ये डैश क्या हो गया ना k 2q. पहले क्या था चार्ज का वैल्यू सेम चार्ज था k² बाई r². तो अब क्या हुआ 2q × 2q डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या हो गया ना 4k² बाई 4r². तो यहाँ पर 4 कट गया, आंसर इज k² डिवाइडेड बाई r². तो इसका मतलब पहले जो फोर्स था वही फोर्स है. आंसर इज बी, आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22, 2 पॉइंट चार्जेस in air at a distance 24 cm from each other so that they interact with a force of F
At what distance from each other should these charges be placed in oil of dielectric constant n to obtain the same interaction? सेम फोर्स के लिए क्या करना चाहिए यहाँ पर? ओके तो पहले वाला 24 सेंटीमीटर में प्लेस हुआ है, तो पहले वाला का फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल्स टू के, दिस वन इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 24 स्क्वायर। ओके 24 का स्क्वायर हो गया, तो इज इक्वल्स टू दूसरे वाला फोर्स क्या हो गया? तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर शुड द चार्जेस प्लेस्ड इन ए ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट 9। तो डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, तो दैट मीन्स के बाई 9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस र स्क्वायर। ओके सो के Q1 Q2 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या है? 9r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर। सो यहाँ पर स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट 3r इज इक्वल्स टू 24, देन r इज इक्वल्स टू 24/3, दैट इज 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। 22 ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। ओके अच्छी तरह से मेथड्स को चेक कर लेना। Next question number 23. So there are two charges 2 microcoulomb and 10 microcoulomb. Ratio of the forces हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंस्टिट्यूट एक्शन रिएक्शन पेयर, मैग्नीट्यूड सेम। Q1 Q2 के ऊपर जितना फोर्स डालेगा Q2 Q1 के ऊपर उतना ही डालेगा, पर अपोजिट डायरेक्शन। सो दैट मीन्स बोथ द फोर्सेस आर सेम, तो उनका रेशियो क्या होगा? 1:1। तो उसी हिसाब से 2 माइक्रोकूलम 10 के ऊपर जितना फोर्स देगा 10 2 के ऊपर उतना ही फोर्स देगा। ऑप्शन ए इज द आंसर, दैट इज 23 ऑप्शन ए। Next 24, two equally charged material spheres A and B, same surface area, repel each other with a force of 6 Newton. Another identical uncharged metal sphere C touches A, is then removed to a distance point. So what is the force between A and B? तो A और B दो बॉडीज़ थे, चार्ज बॉडीज़। ओके उनके अंदर का फोर्स था कितना ना 6 न्यूटन। 6 न्यूटन का फोर्स उनके अंदर था। तो अब क्या हो गया? उन दोनों इक्वली चार्ज थे, तो इसका अंदर चार्ज Q, इसका अंदर भी चार्ज Q, तो फोर्स कितना हो जाएगा? KQ²/r² इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन। तो अब क्या हो गया? A के साथ C दैट इज़ द अनचार्ज्ड बॉडी कंटैक्ट में आ गया, जो कंसेप्ट ऑफ कंडक्शन। तो चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए के ऊपर चार्ज कितना है? Q है। C के ऊपर चार्ज 0 बिकॉज अनचार्ज, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसके ऊपर Q/2, इसके ऊपर भी Q/2। नाउ C इज रिमूव्ड टू ए डिस्टेंस पॉइंट, तो A के ऊपर चार्ज अब कितना है? Q/2। B के ऊपर चार्ज कितना है? Q। तो फोर्स कितना होगा? F' इज इक्वल्स टू K Q/2 इंटू Q डिवाइडेड बाई r²। तो अब फोर्स कितना हो गया? सो दैट इज हाफ KQ²/r², दैट इज 6/2, दैट इज आंसर इज 3 न्यूटन। आंसर इज 3 न्यूटन, दैट इज ऑप्शन C 24 ऑप्शन C 24 इज ऑप्शन C 24 ऑप्शन C। ओके 24 ऑप्शन C। Okay, next question number 25. Two equally charged metal spheres A and B, same surface area, repel each other with a force of 6 Newton. Another identical uncharged metal sphere C touches A, then placed at a midpoint between A and B. Midpoint between A and B, what is the net force?
वैसे वाला ही क्वेश्चन है, 24 जैसा क्वेश्चन है, 25 वैसा क्वेश्चन है। 25 का आंसर करके कमेंट करना, ओके। 25 का आंसर करके कमेंट करना, ओके। 26 2 point charges 2 microcoulomb and plus 6 microcoulomb repel each other with a force of 12 Newton. Then if the charge is minus 4 coulomb added to each one, तो पहले वाला चार्ज कितना है 2 माइक्रोकुलम, इसमें कितना ऐड हो गया ना -4 माइक्रोकुलम, चार्ज कितना हो गया -2 माइक्रोकुलम। तब 6 माइक्रोकुलम था, इसमें भी 4 माइक्रोकुलम ऐड हो गया, तब क्या चार्ज हो गया ना 2 माइक्रोकुलम। तो पहले कितना फोर्स था 12 माइक्रोकुलम, तो क्या हो गया k इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई r² इज इक्वल्स टू 12। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो k इंटू दैट इम्प्लाइज k इंटू 2 इंटू 3, ये वाला 6 को लिख दिया 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई r² इज इक्वल्स टू 12। दैट इम्प्लाइज k इंटू 2 डिवाइडेड बाई r², ये 3 राइट हैंड साइड में डिवाइड हो गया, तो 12/3 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया था ना 2 माइक्रोकुलम, -2 माइक्रोकुलम और 2 माइक्रोकुलम। तो इनके अंदर का फोर्स क्या होगा ना k 2 इंटू 2/r²। तो यहाँ पर हमारा निकल आया है k 2 इंटू 2r² निकल आया है, कितना आंसर ना 4 न्यूटन। तो आंसर इज 4 न्यूटन। पर चार्ज आर अनलाइक चार्जेस, अनलाइक यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो दैट मीन्स फोर्स इज which nature? Attractive nature. Force is attractive nature. Option B is the answer. That is force is 4 Newton, attractive nature का force है। So 27, question number 27, attractive force of 4 Newton is there between two charges +3 microcoulomb and -3 microcoulomb when placed 10 centimeter apart. Placed 10 centimeter apart if the charges touch each other. पहला वाला चार्ज कितना है 3 माइक्रोकुलम, दूसरा वाला माइनस। अगर दोनों टच हो गए तो नेट चार्ज कितना हो गया 0, तो फोर्स कितना हो जाएगा ना 0 हो जाएगा फोर्स। दैट इज द आंसर इज बी, आंसर इज बी। 28 two spheres A and B of exactly same mass are given equal positive and negative charges respectively. Their masses after charging, their masses after charging. Okay, so two spheres A and B exactly of same mass are given equal positive and negative charges. Equal positive, तो पॉजिटिव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। दैट मीन्स ए का मास घटा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसका मास बढ़ा है। तो दैट मीन्स दैट इज 28, ऑप्शन सी इज द आंसर। दैट इज मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी। नेक्स्ट 29, द टू electrons separated by a distance 10 cm have force of repulsion F. Alpha particle separated by 20 cm will have the force of repulsion कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन का फोर्स कितना है, दैट इज k e इंटू ई डिवाइडेड बाई r²। इनके अंदर का फोर्स कितना है 10 सेंटीमीटर था उनके अंदर का डिस्टेंस, तो फोर्स था F। तो 10 सेंटीमीटर था उनका अंदर का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था, तो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है, अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम डबल प्लस, दैट मीन्स चार्ज इज 2e। सो दैट व्हाट इज द फोर्स k 2e इंटू 2e डिवाइडेड बाई, दैट इज डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 20 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया ना, दैट इज k 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 स्क्वायर। तो आंसर कितना हो गया 4 इंटू 10 स्क्वायर, दैट इज k स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर जितना फोर्स था उतना ही निकला, तो दैट इज आंसर इज सेम आज F, आंसर इज सेम आज F, आंसर इज F। ओके, सो 29
आंसर इज ए। पहले जितना था इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जितना फोर्स, अल्फा पार्टिकल 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में उतना ही फोर्स। सो ए पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर ए मेटल स्फीयर, if the rod is suddenly withdrawn, then the charge on the metal sphere is what? Answer is D. Charge on the metal sphere is D, 0. Okay, सो ऐसे ही MCQs का वीडियोस आता रहेगा। ये वाला इलेक्ट्रो स्टडी के थोड़ा था, और इलेक्ट्रो स्टडी के ऐसे ही चलता रहेगा थोड़ा बहुत वीडियोस MCQs के। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।